اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں سورت شہر میں ہوں اور 1:30 بجے تک جلگاؤں پہنچوں گا، اس لیے آڈیو کی شکل میں ہوٹل میرٹ جو ریلوے اسٹیشن کے سامنے، یہاں پر میں بیٹھ کر باقاعدہ آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گزشتہ کل پالنپور کے بھاگل شہر میں 3 بڑے بڑے شاندار پروگرام ہوئے۔ صبح 9:30 سے لے کر 11:30 تک خواتین نے بہت شاندار پروگرام ہوا۔ 2 سے 2,500 خواتین نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ایسے ہی دوپہر میں ظہر کے بعد مدنی مسجد میں ایک شاندار پروگرام ہوا نکاح کے تعلق سے، کہ نکاح کو آسان کیسے کیا جائے، کیونکہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، زنا، حرام کاری، بدکاری کو ختم کرو۔ تو مدنی مسجد میں ظہر کے بعد بیان ہوا، اور پھر رات میں خطاب عام، اجلاس عام مکی مسجد میں بعد نماز مغرب شروع ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں، تقریباً 50-60 کلومیٹر تک جتنے گاؤں ہیں یہاں سے بھی لوگ پہنچے، اور ہزاروں کی تعداد میں مکی مسجد میں بعد نماز مغرب اجلاس عام میں شریک رہے۔ اس اجلاس عام میں ملک کے موجودہ حالات کو لے کر ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، خوف اور ڈر کا شکار نہیں بننا ہے، اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے تعلق رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی پیاری باتیں اللہ نے بلوائی، اور ارتداد سے کیسے بچا جائے، ارتداد سے کیسے بچا جائے، اس کو لے کر بھی تفصیلی حالات بیان کیے گئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ریاست کرناٹک سے ہی آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک میں الیکشن ہے، اور بی جے پی کو کرناٹک کا خوف، شکست کا خوف، ہار کا خوف ستا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ راجستھان اشوک گہلوت نے پریس کانفرنس میں بات کہی کہ کرناٹک میں بی جے پی کو شکست کا ڈر ستا رہا ہے، اس لیے بی جے پی وہاں پر مودی جی سے لے کر امیت شاہ تک اتنے بڑے پیمانے پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی نفرتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں، کیونکہ بی جے پی جانتی ہے کہ جب تک کہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا نہیں کی جائے گی، ہم الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں۔ جی ہاں، بنگلور میں بھی مودی جی کا روڈ شو ہوا، وہاں پر بھی جے شری رام اور بجرنگ بلی کے نعروں کے ذریعے جذبات بھڑکائے گئے، یعنی مودی جی بھی بالکل گھٹیا طریقے سے ہندو مسلمانوں کا ماحول بنا رہے ہیں، اور لگاتار مودی جی بھی باقاعدہ کانگریس پر نشانہ سادھ رہے ہیں۔ لیکن کرناٹک کے الیکشن کو لے کر بی جے پی بڑی پریشان ہے، اس لیے میں کرناٹک والوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، یاد رکھو، بہت برا ہو سکتا ہے، حالات کو خراب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بی جے پی جیتنے کے لیے کسی بھی لیول تک گر سکتی ہے اور ماحول کو خراب بھی کر سکتی ہے۔ اب بجرنگ دل پر جیسے ہی
पाबंदी की बात कांग्रेस ने की तो आका तिलमिला उठे और बजरंग बली का नारा लगाकर बजरंग दल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि हिंदुत्व टोले को खुश करके ही बीजेपी इलेक्शन जीत सकती है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु में वो जो घटिया फिल्म आई है दी केरला स्टोरी, नापाक फिल्म, जिसके जरिए से बाकायदा बीजेपी ये चाहती है और खुद मोदी जी भी चाहते हैं कि नफरतों का माहौल बने, और मोदी जी खुद वजीर आजम होने के बावजूद मुल्क के अमन व अमान को भूल कर नफरतों की इस नापाक फिल्म केरला स्टोरी की खुद मोदी जी तारीफ कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर मोदी जी गिर कर काम कर रहे हैं। उनकी निगाहों में मुल्क का अमन व अमान और शांति की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन खैर, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। तमिलनाडु से खबर आ रही कि तमिलनाडु में दी केरला स्टोरी, इस नापाक फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। अमनो अमान का हवाला देकर रिलीज न करने का फैसला किया गया। यानी तमिलनाडु हुकूमत ने यह कहा है कि यहां पर हमारे यहां अमन का, प्यार का, एकता का, मोहब्बत का माहौल है, और ऐसी घटिया नापाक फिल्में जिनका बीजेपी और मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, ये फिल्म हमारे इलाके में अमन व अमान को खराब कर देगी, इसलिए यहां पर रिलीज हम इस फिल्म को नहीं होने देंगे, इसकी नुमाइश नहीं होने देंगे। नाज़रीन, अमृतसर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जहां गोल्डन टेम्पल के करीब बड़ा धमाका हुआ, कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। पंजाब के अमृतसर में वाक़ दरबार साहिब के करीब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, दरबार साहिब के करीब हफ्ते की रात देर गए एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके के साथ ही कुछ लोग जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम तहकीकात के लिए जाए वकूफ पर पहुंचे हैं। पुलिस ने कहा कि हो सकता है करीबी कोयल रेस्तोरां में चिमनी का धमाका हुआ हो, जबकि वहां मौजूद लोगों का कहना है कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उन्होंने आग का गोला बनते देखा। उसके बाद यह मालूम नहीं हो सका कि पत्थर या शीशा दूर से आया और वहां मौजूद लोगों पर गिरा, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया है। आइए नाज़रीन, बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली बदमाश और मक्कार सरकार उन बेटियों को भी इंसाफ नहीं दे पा रही जिन बेटियों ने मुल्क का नाम रोशन किया और मुल्क के लिए मेडल जीते। आप जानते हैं कि पहलवान बेटियां जिनका इल्जाम है कि ब्रजभूषण जो बीजेपी का नेता है और अध्यक्ष है, ब्रजभूषण ने हमारा दुष्कर्म किया है, हमारे साथ गलत काम किया है और बहुत सारे इल्जाम हैं, लेकिन बीजेपी जो बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली अपने लीडर ब्रजभूषण पर किसी भी किस्म की कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पहलवान बेटियां कई दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही है और अब वो कहती है कि अगर हमें इंसाफ न मिला तो हम दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। और क्यों? इसलिए कि किसान तंजीमों ने उनको सपोर्ट कर दिया है और किसान तंजीमों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर ब्रजभूषण को 20 मई तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। धरने के सपोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से किसान जंतर मंतर पहुंचे और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस से झड़पें भी हुई है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, यह खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। उत्तर प्रदेश में PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ क्रैकडाउन फिर हुकूमत ने शुरू कर दिया है और ATS ने PFI से मुंसलिक होने के इल्जाम में 70 अफराद को उठा लिया है। यहां तक के रिहाई मंच के बानी मोहम्मद शुएब एडवोकेट भी हिरासत में लिए गए हैं। मोहम्मद शुएब रिहाई मंच के जिम्मेदार है, एडवोकेट है, वकील हैं और वो मजलूमों की काफी मदद करते थे। तो लोग कह रहे हैं कि एडवोकेट मोहम्मद शुएब को भी निशाना बनाया गया और उत्तर प्रदेश पुलिस ने तकरीबन 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, रियासत कर्नाटक में आप जानते हैं कि इलेक्शन है और इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह किसी भी घटिया हरकत को करने को तैयार है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। वीर शिव लिंगायत फोरम, जो बड़ी फोरम है और बड़े एकता के साथ में ये लोग रहते हैं,
वीर शिव लिंगायत फोरम ने कांग्रेस के सपोर्ट का हिमायत का ऐलान कर दिया है, यानी बीजेपी को यह भी एक बड़ा झटका लगा है। इसलिए बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी किसी भी लेवल पर जाकर माहौल को खराब कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि गोवा में G20 की एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बुलाया गया था, जहां पर उनका जोरदार अंदाज में स्वागत किया गया, इस्तकबाल किया गया। मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो ने सिर्फ कश्मीर, G20 और BBC डॉक्यूमेंट्री पर बात की। जयशंकर जो हमारे भारत के वजीर खारिजा है, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी वजीर खारिजा को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए मदऊ किया था। हिंदुस्तानी वजीर खारिजा जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शंघाई ताउन तंजीम के दौरान साइड लाइन मुलाकातों में सिर्फ इंडिया के हवाले से बात की। नाज़रीन, जैसे ही कांग्रेस ने बजरंग दल जैसी आतंकी तंजीम पर बैन लगाने की बात की और यह कहा कि अगर कर्नाटक में हम जीत जाते हैं तो बजरंग दल जैसी आतंकी तंजीम पर, जो पूरे मुल्क में दंगे फसाद करवा रही है और बीजेपी उसे सपोर्ट कर रही, जैसे ही बजरंग दल के खिलाफ कांग्रेस ने बात की तो जनाब बीजेपी तो तिलमिला उठी, क्योंकि आका है और बजरंग दल बिल्कुल बच्ची तंजीम है जो मुल्क में बीजेपी के लिए माहौल खराब करके बीजेपी के लिए काम करती है। तो अब जनाब बजरंग दल पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने तबसरा किया और बजरंग दल के खिलाफ जब कहा तो खबरें आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 100 करोड़ मुआवजे का नोटिस भेज दिया और हद के इज्जत का 100 करोड़ का नोटिस भेज दिया। यह नोटिस विश्व हिंदू परिषद की चंडीगढ़ यूनिट और उसकी यूथ विंग बजरंग दल ने 4 मई को ही जारी किया था, जिसमें 14 दिनों के अंदर मुआवजे का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है कि महाविकास अघाड़ी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, इसके ताल्लुक से अजीत पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। मीडिया से खिताब करते हुए एनसीपी लीडर अजीत दादा पवार ने यह भी कहा कि आप लोग मुझसे इस किस्म के सवालात करते हैं जिनसे कंफ्यूजन पैदा होता है। महाविकास अघाड़ी के इत्तेहाद को बरकरार रखने की बात अजीत दादा ने कही और यह भी कहा कि जरूरी कोशिशें की जा रही है। पुणे जिला के बारामती में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही है। नाज़रीन, ये बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने कर्नाटक से ही आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक का इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है और अपने जितने जहरीले सांप हैं बीजेपी ने सबको वहां पर छोड़ दिया है कि किसी भी तरीके से माहौल को हिंदू मुसलमान में नफरतों का बनाया जाए और फायदा हासिल किया जाए। तो ऐसे ही जहर उगलने वालों में आप जानते हैं कि आसाम के जो मुख्यमंत्री है, आसाम के सीएम है हेमंत बिस्वा, ये भी जहर उगलने में कोबरा से आगे हैं। वहां पर जाकर इन्होंने जहर उगलते हुए माहौल को खराब करते हुए भाषण में यह कहा कि हम मुस्लिम खवातीन को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनने देंगे। कर्नाटक में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी के लीडर वहां जाकर हर तरह से नफरतों का जहर घोल रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री ने भी वहां जाकर सांप से भी ज्यादा जहर उगला और हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने की बात कही, मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया और कहा कि मुस्लिम खवातीन और बेटियों की 4 से ज्यादा शादियां की जाती है, हमें यकसा सिविल कोड नाफिज करना होगा। मुसलमान बेटियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाए, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है। यानी वजीर आला आसाम हेमंत बिस्वा कितने जाहिल है उनके इस बयान से समझ में आ रहा है और कितने जहरीले हैं उनके इस बयान से समझ में आ रहा है। लेकिन खैर, बीजेपी को यह घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क का अमन, शांति, एकता सबसे बड़ी चीज है। अगर मुल्क का अमन खत्म होता है तो याद रखे बीजेपी कि तुम्हारी कुर्सी भी सलामत नहीं रहेगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी?
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।